السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسجینڈرز اپنے سیٹ کے ساتھ. وے سونے دیا کنگنا سودا اکو جیا توبہ. دینا تے دل منگنا وے سودا اکو جیا وہیں بیٹھے رہو. دینا تے دل منگنا اٹھ کے کھلو نہیں اکو جیا وے سونے دیا کنگنا سودا اکو جیا دل دینا تے وہاں بیٹھو. میں نہیں ہوں تکنا وے تینوں اگر یہ اب اٹھی نا میں نے بند کر دینا سارا کچھ. بند کریں گی سارا کچھ اور انہیں فارغ کریں یہاں سے. چلیں انہیں پیسے دے دیں تھوڑے سے اینڈ دیٹس اٹ. تھوڑے سے کیوں؟ کیا ہو گیا؟ میں سیدھی پدری میں لدس ہو سیدھی گئی. پدری کی بچی لدس ہو گئی ہے میری چار پہ ڈونگی. یہ کیا ہو گیا؟ بے شرم ہو تم. کیا ہو گیا بچی کے اوپر آپ نے کیا پریشر ڈال دیا؟ السلام علیکم. تمہارے گلے کو کیا ہوا ہے؟ ہائے گلا تو میرے پہلے کوئل جیسا ہوتا تھا. اے کھوتے حرکتیں ہون ہویا. توبہ. ہم آپ کے پرانے چاہنے والے ہیں. وہی نہیں جو بڑی سلم سمارٹ اور وہی ہے وہی. تو ہن میں نے کی گولا باج کیا ہوا میں نے. سبحان اللہ. کیا کریں چڑیاں اس طرح نہیں ڈانٹی دا ہوندا. اگر تم نے ذرا سے بھی حرکت کی نا چلاک بننے کی کوشش نہ کرو. تم کھڑی ہوتی ہو کہ میری پتہ نہیں کیا ہو گیا کلیاں پڑی ہوئی ہیں. سو گئی ہے اور فلانی کے. خبردار اس طرح کی بیہودگی یہاں نہ کرنا. جتنا مرضی غصہ دکھائیں آپ کے نین نقش ہو رہی کچھ بتا رہے ہیں. اچھا اندر سے آپ نا ہمارے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں تمہارے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں. میں تمہیں اپنی بہنیں سمجھتا ہوں. اللہ رحم کرے. کیا آ گیا آپ کا؟ آپ کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں سوائے خلوص کے. آشی بٹ ہے نا، ہاں میں نے اسے سکی بٹیٹ بہن بنایا ہوا ہے. اگر وہ میری بہن ہے تو تمہیں کیا موت پڑتی ہے؟ آپ تو ہمارے دل میں بستے ہیں اس لیے تو میں کہہ بہرحال آپ کا میں بھائی ہوں. ان کے ہوں گے میری تو جان ہے. کسی کا بھائی کسی کی جان. سلمان خان بلکہ آفتاب خان. سلمان اچھا یہ سنا فلم پٹ گئی تھی؟ جی سر. او ہو. بھائی اتنے پٹیاں فلموں میں بزنس کر جاندیاں. جانتے ہو ایڈا وڈا ملک کی ہو گیا تانوں. جیسے میں نے دیکھا ہے وہاں کا سینما گور کافی ڈھیٹ ہے. جی. وہ پٹھان جیسی فلم بھی بڑے پیسے کما گئی. اوے اس میں آپ نے دیپیکا کو وہ سٹیپ نہیں دیکھا؟ جمپک والا. تم نہ کرو چارپائی ٹوٹ جائے گی. شکیل صاحب تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ. اچھا تم اس طرح ہو کے بیٹھو. کس طرح؟ ادھر ہو کے. اپنے سٹائل سے. ہاں تمہیں پتہ نہیں پیچھے ماہرہ خان کی تصویر ہے جو ابسٹریکٹ کر رہی ہو تم. بات سنیں، آج آپ کو میرا خان اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے. ماہرہ خان ویسے ہی بہت اچھی ہے. دیکھو کتنا پیارا پوسٹر اس کا لگا. میں نے اس کو پوسٹر پاڑ دینا. اب اس کو اچھا کہا تو میں نے سمجھا دیا. تو آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کسی دیکھو کس قدر بےہودہ ہے. ان ایجوکیٹڈ، ان کلچرڈ، ان گرومڈ. انہیں اج تیز مرچاں والا میک اپ کیتا اور جناب. دیکھو اپنے آپ کو کیا سمجھ کے. ہم اب انگلش سیکھ رہے ہیں. پتہ ہے شکیل صاحب سے کلاسیں لے رہے ہیں ہم. یعنی شکیل صاحب کو آپ نے انگلش کے لیے رکھا. ہاں جی ایک ہم نے پی آر او بھی رکھ لیا. پتہ ہے پی آر او کیا کرے گا؟ وہ ہماری امیج بلڈنگ کرے گا. ہاں دیکھو جس کا پروموٹر نہ ہو کوئی سر پہ نہ ہو ان لوگ کی ٹگے ٹوکری سمجھ دینے. کچھ بھی نہیں قدر ہی نہیں کرتے. وہ ہمیں بھیجے گا گاڑی لینے آئے گی گاڑی چھوڑ کے آئے گی. پیسے بھی ملیں گے پیسے بھی نہیں مریں گے. اس کا یہ فائدہ ہے. ہاں سیکٹری رکھا ہو نا تو فنکشنوں کے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں ہم کو. پتہ نہیں لوگوں کی ہو گیا ان جیب سے پیسے نہیں کٹ دے آفتاب جی. ہاں جی تھوڑا سا پھر پیچھے ہو جائیں. آپ رستہ روکیں. یہ کس نے لگا دی ہے یہاں تصویر ہے؟ شکیل صاحب دیکھ رہے ہیں نا ٹک باندھ کے. ہاں تو میں اور ان سمجھے نہیں ہے. میں چا منڈا ہے دیکھیں باجی وہ جن کو گاڑیاں لینے آتی ہیں نا ان کا تھوڑا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھے کیا حال بنا. کیا تمہیں تم سے اچھے کپڑے پہنے ہیں میرے سے یہ گلہری صفت عورت ہے. ایک دم کھڑی ہو جاتی پھر بیٹھ جاتی. نہیں تو ہمارے خلاف بات کو کرو. میں ابھی بتاؤں جان نکال دے. نہیں جڑا وہ ساڈے خلاف گل کرے گا اسی تے پہ پے جانی ہے اڑ کے اونوں. ایک منٹ ٹھہر جا ذرا. یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے منجی نے سکون لیا 1 سیکنڈ کے لیے. ڈاکٹر نے ساڈی باجی نو کہا تو گھنٹے بعد اٹھ کے نا ساہ دوانا ہے. کس کو؟ منجی نو. انہیں کل ٹھول آئی سلطان رائی نے گنڈاسا سر چ ماریا. ادوں دا چیر نکلیا. ہائے صدقے جاؤں رائی صاحب یقین اتنے محوج حیات بھی بیٹھی سبحان اللہ بیگ پیک کر کے. ہاں جی میں تے آپے دیر گئی ہوں نہیں سا. میں بھی انج لت مار کے نا پیپسی کھول دی ہوں سا. انہیں تے 7 اپ کھولی ہے نا. پیپسی چ بہتا گیس ہوندا ہے تے باجی چ بھی ادوں دا بڑا گیس ہویا ہے. آپ کا کبھی دل نہیں کیا ہمیں شاپنگ کرائیں؟ تم اگر مانو کہ تم میری بہنیں ہو اور میرے کہنے پر تم علم حاصل کرو گی، یہ ناچ گانا اور بکواس بند کرو گی تو میں روز شاپنگ کروا دوں گا. ایدی علم ایدی حاصل کیتا سی سانو ایویں نہیں آ گیا. یس اور نو؟ نو. اچھا میں مان لینا میں تہاڈی بھੈਣ ਮੈਨੂੰ شاپنگ کرا دوں. ویسے آفتاب صاحب اس وجہ تے تسی سانو عید بھی نہیں دیتی. پہلے تے بھیج دیندے ہوندے سی. اس دفعہ میں نے
आशी भट्ट को भेजी थी। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ काम ਕਿਹੜੀ पता है वो काम क्या करती है? ਜੀ फलाई इदारे चलाती है। उसने घर बनाया हुआ है जहां तुम जैसे बेसहारा लोग, ख्वार और बीमार लोग, उनके लिए उसने शेल्टर बनाई है। आशी भट्ट जिनकी टेक केयर कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋग नहीं गए। ਅਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाने अपना कमाने। फिलहाल खाते कमाते हो ना, जरा और 5-1 साल ऊपर जाएगी ना एज, फिर मैं पूछूंगा जब गोडों से भी जाओगी और गिट्टों से भी। तो हम किस लिए परवान चढ़ रहे हैं, हम लेके चलेंगे इनको। जब दोनों बूढ़ी हो जाओगी फिर बूढ़ा तो है। बद्दुआ पे क्यों उतर आए हैं आप, क्या मसला है आप? ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਹੋਰ आराम मैं से लोशन खोल देनी है, मैं तुम्हें कहा रहा हूँ। आगे से हटो, आगे से। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਨਹੀਂ पोस्टर के आगे नहीं आना। इधर हो जा, मुस्तफा कुरैशी ने पहले वार्निंग दी थी। जितने सुख में हम लोग जिंदगी गुजारते कोई भी नहीं गुजारता। चल नहीं बेअदब। उठ, दोपहर तो हाजिर नहीं वो गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्या है इनको। नहीं करते, मैं उन्हें आरे लानी है। नहीं यारे शारे। चलना फिरना भी हमारा बंद कर दिया, मैं चलने तो वॉक तो करने दिया मैं कर। बड़ी मुश्किल ने कुड़ियां नु पाले आ, यकीन करो। हाय ਤੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ हाय कट्टा खिदमत की थी, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀ ਐਡੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਨੱਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। नैसन भट्टी अच्छे सिंगर हुए। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਕਰ ਲੈ ਜਗ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਕਰ ਲੈ ਜਗ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਣਾ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ऐसे पिंडा से रखिया है उसने। ये पिंडों के लिए रखो प्लीज। ਹਾਂਜੀ तो ਉੱਥੇ मैंने आज तक नहीं सुना है। ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਬੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਖਵਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਏ ਛਪਿਆ ਉੱਤੇ, ਸੀਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, बेशरम हो तुम। ਸੀਏ 15,000। क्या कहने भाजी, स्टाइल की ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, तो सोफा भी अच्छा लग रहा। ਤੋਂ ਸੂਟ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ क्या ਹੈ। कहने खुसਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा तुम साढ़े को एडे परेशान क्यों रहते हो? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस ये बदतमीजी ना किया करो। हमें- एक तो बोलने का अंदाज गैर महजब नहीं होना चाहिए, दूसरा ये जो नाच गाना शुरू कर देते हो ना, नाच गाना ही तो करना है, और ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। हाय हाय ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਯਕੀਨ। नहीं वहाँ क्या कर रही है? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਧਰੋਂ। ਉਹ ਪੀਆਰਓ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਧਰ ਜਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2-2 ਚਮਚੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, दही अच्छा लाता है। ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा 1.5 घंटा भी लग जाए ना, वो खड़ा रहता है, जब नया कुंडा आना है ना तब उसने लेना है। नहीं तो पीआरओ करता क्या है? ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ओह, ਪੇਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ पेपर मीडिया कौन सा होता है? प्रिंट मीडिया। ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ, ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। आगे 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 ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਂਦਾ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ। ये पीआरओ है? ਹਾਂਜੀ ਪੀਆਰ। वो दही नहीं लाए तुम? सर बावर्ची खाने रख के हैं सर। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੂੰ? नहीं तो होर चौक के पूछना ले आया। पब्लिसिटी लगाई है हमारी। जी तस्वीरें नहीं लगाई हैं पेपर के अंदर, उसके अलावा जो वीलॉग किया था वो भी लगाया है, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उस वीलॉग के ऊपर। ਉਸ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही मैं है। नहर के किनारे किया था व्लॉग, सबने छलांगे लगाई, वापस निकले, इतना वायरल होना है। ਹਾਏ हम ਯਕੀਨ- छलांगे लगाई, मेकअप से बड़ी पड़ी थी, वापस ही सारी चो रही थी, ऐसे मेकअप चो रहे हो। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग पे जलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना। बैठ जा। बड़ी दसो टिकटॉक 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ, मैं यूट्यूब वास्ते शार्ट लैन लग गया सी, लेकिन चुप करो। ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਟ ਲਾਓ। नहीं राम ना, मैं नहीं राम नल, इधर आवे, मैं पहले मेरा बना। तुम्हारा है भी बना तुम इनको। ਅੰਕਲ ਜਣੀ ਬਾਜੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਤੀ।
ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਬਾਜੀ, ਦੁਬਈ ਹੋਣ ਲਈ ਐਡਾ ਹੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। लो जी ये ब्लॉग ज्यादा वायरल होना है। वैसे मैंने ये देखा कि ये सबसे ज्यादा बदतमीज है, 3-4 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ बाकी ਬਾਜੀ। निहायत बदतमीज है। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। वेलकम बैक जी। शादी की तकरीब छोड़कर इम्तहानी मरकज पहुंचने वाली दुल्हन के सोशल मीडिया पर चर्चे। ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜਨ ਚਲੀ ਗਈ। पूरा उरूसी लिबास में यस, पर्चा देने चली गई। बीए का पर्चा था, उसने कहा कि, और वो भी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, यस। ਵਾਹ ਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। वो कहती वो भी बहुत अहम है, ये भी बहुत अहम। ਮੀਆਂ ਪਾਸਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਆਉਂ ਨਹੀਂ। अच्छा ये कहाँ का वाक्य है? झांसी उत्तर प्रदेश। नहीं तो ये कोई डेट मैच हो गई कि उस दिन ही शादी उस दिन ही पर्चा। वो असल में शादी से पहले ना वो निकलवाते हैं ना शुभ घड़ी कौन सी है, उस वजह से वो क्लैश हो गया। एक तो मसाइल थे शुभ घड़ी के, दूसरा दूल्हे ने जाना था अब्रॉड। उसने कहा जी इन्हीं दिनों में कर लें क्योंकि फिर मैंने जाना है तो मेहरबानी करें। उसके पेपर्स आ रहे थे। वाह। तो उसने कहा कोई नहीं, मेरे पेपर्स आने दो, इम्तहान मैंने देना ना, नो प्रॉब्लम। तो सर उसकी शादी हुई बाद में? नहीं, पर्चा दे के आके की? वो इस काबिल होगी कि उसकी शादी हुई ना। और मैं तो ये समझता हूँ कि ससुराली बहुत प्राइड फील करते होंगे बिल्कुल। क्या बात। कि वो किस मकसद के, वो कोई डकैती करने नहीं गई थी, कुछ और करने नहीं, वो इम्तहान देने गई। मेरी बहू ये करे ना तो मैं उसका बहुत ही गर्विता हो जाऊँ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। जो है ना वो दुनिया के किसी खित्ते में वो सीरियस है, बिल्कुल। जो नहीं है वो नहीं है। बिल्कुल सर, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं तो अक्सर ऐसा होता था कि जो ब्राइड्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है या फिर उनकी रात को मेहंदी है तो वो पेपर देने के लिए आई हुई हैं। हाँ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। बेशक। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? वो तो 74 साल की उम्र में केपी का एक आदमी, उसने 74 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की। बेगम आबदा हुसैन ने इस उम्र में ग्रेजुएशन की। हालांकि बेगम आबदा हुसैन इतनी पढ़ी लिखी, इतनी शानदार पर्सनैलिटी हैं, शी इज़ अ पर्सन टू बी विद, और पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं, किताबों की ऑथर हैं, और ऐसी ऐसी शानदार सहरंगेज बातें करती हैं। उनकी किताब में इंकशाफात हैं बहुत बड़े बड़े। शी वॉज नॉट अ ग्रेजुएट, डज इट इवन मैटर? वो असल में नवाबजादा नसरुल्लाह खान को शायद निकालना चाह रहे थे प्रोसेस से। नहीं नहीं, वो एक ओवरऑल एक उसकी सोच थी मुशर्रफ की बेचारे की, जो कि सरासर गलत Yes. थी। नहीं तो सब ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छी बात है, मास्टर्स होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, लेकिन अवामी नुमाइंदों के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पढ़े लिखे का मतलब डिग्री नहीं होती। ट्रू। और बात भी हम यही करना चाह रहे हैं कि बेगम आबदा हुसैन ग्रेजुएशन के बगैर भी बेगम आबदा हुसैन ही थी। अरे वाह। और कुछ लोग पढ़ लिख कर भी, मैं अब नाम नहीं लेता क्योंकि बड़ी दफ़ा मैंने पढ़ा हुआ है उस वज़ीर को बेचारे को, वो जिस होटल में जाता था वेटरों को मारता था, वो टुन्न होकर अजीब अजीब हरकतें किया करता था। तो पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा अगर आपकी ग्रूमिंग ही अच्छी ना हो। सर मेरे पूछने वाली ये बात तो नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ पे डांस कर लूँ। यार प्लीज बात करने दो। सर जी वो आपदा जी की किताब का नाम क्या है? मैं आपको पता है आपदा जी की किताब की सेरेमनी पे मैंने वो डांस किया। आबदा जी क्या हो गया? ये बेगम आबदा हुसैन के आबदा जी, मतलब ये जी जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में होता है, हर जगह नहीं होता। नहीं रहना चाहता है आपदा जी आगे हो जी। आपदा हुसैन साहबा की किताब का नाम क्या है? पावर फेलियर, पॉलिटिकल ऑडिसी ऑफ पाकिस्तानी वुमन। वाह। इसगाव साहब भी किताब लिख रहे हैं सर, केड़ी? नचते घुंघरू। ये तो सच्ची मुच्ची है, ये कोई गल करने वाली कर। अच्छा सर मेरे मेरे दादा को भी बड़ा अच्छा डांस करता और नहीं यार उन्होंने भी ना आखिरी 70 साल की उम्र ਉਹ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ बीए ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीए ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अच्छा सर मेरा एक दोस्त है वो भी नचता है। मेरा एक दोस्त है उसने भी शादी की एंड उस टाइम जब उसकी बारात थी। शादी
क्यों जी हुण दसो सर अभी अभी खाना खाया ना। उसकी शादी थी लेकिन वो पेपर देने चला गया। ये बात इस तरह की जा सकती है। वो बस वो सब ट्विंग टेस्टर हो गया। ट्विस्टर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हनी भाई रोटी इन्नी खांदा अंदरों हाई नेक बन जाती है। तीसरा माशाल्लाह इतने कमजोर हो गए जराबां भी ढिलियां हो गई। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਾਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। और हौली हौली टूरी मन नाल ले जा। रोज ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ। अच्छा जी, गुजरात इंडियन, उसमें समुद्री तूफान इस कदर शदीद था कि एक तरह से सुनामी की कैफियत थी। वहाँ पर एक शादी थी इस दौरान, तो शामियाने पकड़ के खड़े हुए थे क्योंकि हवा इतनी शदीद थी। उन्होंने कहा जब तक ये फेरे, तो इस दौरान उड़ गया, तो मंडप पे उसने बारिश में फेरे लिए, शदीद बारिश है, और उसने कहा जी खैर। सर ये जो एक माह पहले आया था समुद्री तूफान, ये आप उस वक्त की जी बात जी कर? 2023 की बात है, यानी जी चंद जी ये 1 महीना पहले। उनमें मुहूर्त का भी चक्कर होता है ना, टाइम ना लंघ जाए थे। क्या जी? मुहूर्त। अच्छा आपको पता है आपके मोहल्ले में आपको मुहूर्त कहते हैं। वो मुहूर्त होता है, वो आपको कहते हैं। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋ ਰਹਾ के ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ सबसे तवील दौरानिये की आग कौन सी थी? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। थी, बुझ गई। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तो तकरीबन 2,500 से 3,000 साल जल रही थी लगातार। हाँ जी, नो, यू आर वेरी क्लोज। तेहरान। हाँ, ये पहाड़ नहीं मेरे भाई। अच्छा तुम आज़रबाईजान की वो आग बात कर रहे हो जो पहाड़ों में होती है, जो लावे? नो, ये ज़रतुश्त के मानने वाले जो है ना, जो आतिश परस्त है, इसको कहते हैं आतिश कदा ईरान। ये हजारों साल से जल रही थी। जंग कादसिया के बाद इसको बुझाया गया था, जब ईरान फतह हुआ। किसके दौर में हुआ था? खमीनी के दौर में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। तो सर ये उस वक्त से जले जा रही थी? नहीं, वो बुझने नहीं देते थे। मानने वाले थे। ये क्योंकि उनकी इबादत का हिस्सा है ना, कि जिसकी उन्होंने परस्तिश करी, यानी उनके लिए तो वो गॉड का दर्जा रखती है। सर झांसी वही है जहाँ की रानी बहुत मशहूर है। यस, द रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मी बाई, बड़ी मशहूर और बड़ी बहादुर खातून, जिसके बारे में अंग्रेज़ कप्तान है कैप्टन रॉड्रिक, वो कहता है कि मैं हैरान रह गया इस जंगजू खातून को मैदान कारज़ार में। ये कैसी मार्का आरा जंग कर रही थी कि इसने घोड़े की बागें दांतों में फंसा रखी थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। क्या कह रहे? She was less than 30 when she died. 30 साल 30 साल से भी कम उम्र थी। ये जंग लड़न तो कितने साल बाद फौत हुई जी? मतलब 30 साल। इस जंग में जख्मी हो गई ना, अच्छा। तो बस जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जवानी की मौत मरी है। हीरो थी ना बहुत बड़ी। सर जी मेरा ख्याल खवातीन जो पहली औरत ऐसी हुई जिन्हें जंग लड़ी या बहुत सी जंगजू खवातीन हो गुजरी हैं, ये क्या बात है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਜੂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਫਲਾਣੀ ਹੈ ਬਲਕੀਸ ਹੈ अच्छा जितदी हो जी बहुत ही गंदी गाल कर ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ। वैसे ये लड़ाई बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है। मेरा ख्याल है अगर मैं अपना सहाफती करियर देखूं ना तो मैंने बचपन से ही आगाज कर। अच्छा महल्ले च लड़ाई होंदी है फिर लंघे जांदे नु कहंदे तैनू ले जाए साइकिल वाला उत्थे खलो गया। और लड़ाई तो बाद में जेड़ा बीबी सलाह गई है ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਆਫਰ ਮਹਿਦੂਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੌਬਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ऑडियंस बन जाता है। अच्छा सुन पूरे नमाक से रहे होते हैं, जैसे किसी कायद की तकरीर सुन रहे हैं, लेकिन शो करते हैं कि अपने काम में मगन है। कोई टायर खोल रहे हैं, कोई और काम करी जा रहा है, और कान सिर्फ उधर है। साडा फुੱਫੜ जी अच्छी काल ते क्लैप करता सी। ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲਾੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। क्यों ने पक्का लाया सी? ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਚਲੇ ਗਏ ਚਾਚੂ। शादी वाले दिन ਯਾਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ। पागल सी। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲਾ ਟੈਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟੈਂਡ ਕਰਾ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਚੂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। छोटी हुई हुई क्या ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ, नहीं कहा छोटी हुई हुई में चला गया। ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ चला गया अच्छा, मेरा। बड़े बड़े हादसे सुने हुई भी। सर मेरे खालू ने अपनी शादी वाले दिन टेंट करवाई क्योंकि गर्मियाँ थी, नहीं पा लिया। उसके बाद उनके बाल ही नहीं आए, उनके आज तक उनकी टेंट ही है। और साल बाद तलाक हो गई। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲਾ ਲਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਰ 'ਚ। ओ इसने कुल्ला उतारा ते क्लैप हुई। क्योंकि इसकी दुल्हन ने पहली दफा देखा था। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वेलकम बैक जी जनाब। 56% मिस्री अपनी बीवियों से मार खाते हैं, नए सर्वे ने तहलका मचा दिया। सिर्फ मिस्री तो हर घर की कहानी है शकील साहब। नहीं नहीं, हर घर की नहीं है। मिस्री नंबर 1 है, ब्रिटिश नंबर 2 और इंडिया नंबर 3 है। और सर पाकिस्तान पाकिस्तान तो बहुत दूर है इस हवाले से। पाकिस्तान में तो मारने वाले ज़्यादा हैं। जी। इंडिया के गांव में ख़वातीन ने ऐसा ग्रुप बनाया था कि जो मर्द शराब पी के आता था वो मिल्क के डंडे से पिटाई करती थी। हाँ, और शराब लाऊं दिया था। यस। क्योंकि वहाँ पर दारू शॉप्स बहुत है ना, तो दारू बुनियादी वजह होती है मारने की, और दारू ही बुनियादी वजह बनती है पिटने की। बिल्कुल सही, ऐसा ही। लेकिन ऐसी हरकत ना ही करे बंदा कि बीवी को इतना हौसला हो कि वो हाथ उठाए। क्यों शकील साहब? बीवियों को ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਧੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਨਾਲ ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓ ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਅ ਚ ਹਾਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ आओ जी रावलपिंडी वाले यार तराओ पा भाई अपना अपना फ्लेवर होता है, गुजरांवाले का स्टाइल है। सर ज्यादातर इन मार धाड़ में कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं? चाकू छुरियाँ तक चल जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि किचन के जो औजार हैं जी। तो अगर देखा जाए तो चाकू छुरी भी किचन का ही औजार है। हाँ जी। देखो बेलना बेलन बेलना और फ्राइंग पैन, Yes. जिस चीज की ग्रिप हो ना, हाय हाय बनी बनाई तड़ांग। दसो क्यों जी? अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਚ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੁਆ ਕਿਆ ਥਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। मैं अच्छा, जो तुम कहती हो फौरन आ जाओ, गल भी नहीं सुनी होती। जो कहती हो चलो मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। पहले के कुंडी ला के मार खाते, देखो दरवाजा बंद है, पकड़ो जूती और मारो। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, वहाँ मुझे थप्पड़ मार। हाँ, ये सब सर अपने अपने घर की कहानियां बता रहे हैं। बीवियां दी जरूरत है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੀ। फ्लोरिडा में एक बीवी ने ठुकाई की अपने शौहर की सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बर्थडे भूल गया था। कहती बगैर फूलों के आ गया और बातें कर रहा है, खाने वाने की बात कर रहा है, और इसने तो इसलिए मेरे से फिर इसने, लेकिन वो भी सीधा पुलिस के पास गया। उसने कहा जनाब इसने ना सिर्फ मुझे ज़दोकोब किया है, बच्चों के सामने इसने मेरी फीलिंग्स, मेरी ईगो हर्ट की है। अगो पुलिस वाला भी रोन दिया सी, आज तेरी भाभी ने मैंने भी मेरी तो उन्हें ईगो सुझाती थी। नहीं, वैसे ऐसा वाकया हुआ है पुन्नू आपके साथ? नहीं भाई, तवज्जो रखें इन चीज़ों पे कि है। हाँ नहीं भूले ना जाहिर है यार, हम अगर कोई काम कहते हैं वो भूल जाए, हमें गुस्सा आता है ना, तो उसका भी हक बनता है। इसके गुजरांवाले का एक वाकया बड़ा मशहूर। क्या अच्छा सर? जी। 2 बीवियों ने मिलकर, एक शौहर थे उसकी 2 बीवियां थी, उन्होंने मिलकर एक शादी में बैठे हुए अपने शौहर की वो धुलाई की क्योंकि उसको किसी ने लाइव कर दिया था। क्यों शादी का वो होता है ना, हमारे यहाँ भी जैसे एक छोटा सा वो एक स्टेज उसके ऊपर बैठा, तो उनका ख्याल था कि तीसरी शादी कर रहा है, हालांकि वो किसी की वो गरीब किसी की शादी में शिरकत कर रहा था और बहू बन के साथ तस्वीरें करवा रहा था। दोनों ने वो अच्छा फेंटा लगने के बाद लोगों ने पूछा कि इसे क्यों मार रहे हो भाई, तुम खुद ही बोलो आगे से, बात तो करो। वो चुप करके मार खाता रहा
किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्यों मारी, कहता मैं नहीं पता। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਬਲਕਿ जैसा ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ मासूम थे। ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ मार खा खा के। लेकिन वाकई खवातीन अच्छी रहे तो बहुत अच्छी रहती हैं। नहीं हमारे घर में भी अगर कोई किसी बात पे नाराजगी है ना तो बस 4-5 घंटे बुलाना नहीं एक दूसरे को, और कान पड़वा 4-5 घंटे बाद खुद ही स्मूथ हो जाता सारा कुछ, बस ठीक है। भाभी पुनू तो कान फड़ा के 4-5 घंटे आराम में बैठे रहती है। हौली हौली कह रही थी बिछो चाहो। अच्छा आप लोगों को अच्छी बात भी बताएं ना तो आप वही ओए एग्री नहीं करते ओए इस पे। होए, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ना यार नहीं ਸਭ ਤੋਂ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲੋ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਅਗੋਂ क्यों डरते हो आप? और यार नहीं ये जितने भी इस वक्त बैठे हैं ना ये घरों में से गजों में रंग भरे नहीं है घरों बारों सुख जने ते इतनी दूर बैठे हैं ना। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੜਕੀ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੀ साहब आपके साथ भी इस तरह होता है? हाँ जी अच्छा सखावत साहब की मिसेज भी बहुत सख्त है इस मामले में। हाँ जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਿਬੜਾ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ। आर्ट लवर है ना जी वो। ਇਹ ਨਾਲੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਠਾ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਠਾ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੜੇ ਰਹੇ ਠਾ ਠਾ ਪਾ मार रहे होते हैं बाप को। ਹਾਂਜੀ मां ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। बस सीरियस नहीं है, प्यार से। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। सर जितनी भी लड़ाई हो अनबन हो ਕਿੱਡੀ आपको ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹੋ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਫਿਰ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹੂੰ। ਔਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਲੋਂਦੀ यार बात तो सुनो उसकी। सर ये कि बच्चों के सामने कभी भी नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उस लड़ाई का इम्पैक्ट बहुत गलत जाता है बच्चों के ऊपर। वेरी ट्रू। हाफिजाबाद में शकील साहब आफ्ताबी बात हनीर बेला अच्छा? हाँ जी हेलो भी भूल गया अनिल बेला मां यार फौरी माहा में ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? क्या ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੂਗਲ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸਵੀਟ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਤਾ ਸੋ जिन्ना मर्जी जीदा ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅੱਖ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी फिर सब तो पहले अगली आंख कड्ढे कूड़ पुणे तो बाद क्या कराया सी तुसी चलो सॉफ्ट हो गए सी सर आपकी कभी लड़ाई हुई? हाँ कई दफा हुई। नहीं भाई उस टाइम कहते प्लीज चुप मैं शो पे जाना है बस गाड़ी निकालो ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। हाफिजाबाद की बात बता दूं। जी जी, सर प्लीज। प्लीज। माशाल्लाह क्या कहने एक औरत ने डंडे मार मार कर अपने शौहर को जान से मार दिया मार दी थी। कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने घर से बाहर कदम नहीं रखना। हाल है तुमने एक दफा हुक्म अदूली की, दूसरी दफा की, ये आखिरी दफा थी आज। मार मार के उसने कदों दी गल भाई 2020 की वेरी रीसेंट। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। मैं जिस दिन घर जाना ना सब तो पहले जाके देखो डंडा कितने पे है उन्हें चुक के बाहर सुटो ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ वो ਕਰਦਾ। बेचारा इब्राहिम लिंकन था ना, वो इस तरह के आलात ज़र्ब जो है वो छुपाता फिरता था, उसे बड़ी मार पड़ती थी। उसे तो बाहर निकाल देती थी, बंद कर देती जो आउट जो प्रेजेंट थे जी। प्रेसिडेंट कैसा शरीफ आदमी, और 6.5 फुट का था। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਥੜੀ ਤੇ ਲੜੀ। ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹਨੇ। भाई वाह, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ये सखावत बता रहा है आपको ये चीज। बहुत अच्छे सखाओ साहब नहीं, स्लेवरी खत्म कर दी थी, ये उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा इस सोफे ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਜੱਜ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा शकील साहब भाभी के साथ कभी कुछ अपकलश कोई नाराजगी हो जाए उसको किस तरह फिर वो करते हैं? That's a good question. Next question, please.
क्या शरीफ आदमी है। क्या बात है, बहुत अच्छे शकील साहब। बहुत अच्छे। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈਣੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। क्या बात। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰਾ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਈ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਸ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਰਕਾਣੇ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ मोटा नहीं नकल उतारदा, बहुत अच्छी उतार। ਸਲੀਮ ਕੀ ਯਾਰ ਭਾਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗਮ, ਤੇ ਭਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਫੋਨ ਆਇਆ 9 ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਟੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲੀਮ ਜਾਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਓਏ ਪੁੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਮੇਰੀ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ।